Hello class 7. So how are you? Today we will study the next topic of chapter heat. Okay, class 7 science chapter heat, and the topic is types of thermometer. Okay, in the previous class we discussed up to what is thermometer. I also told you the types also, but here we'll that means study it complete, that means in a complete way. Okay, so let me ask you to subscribe to my channel and share these videos among your friends so that they may also get benefit of it. Okay, so let us begin. Types of thermometer is there are mainly, you can say, two types of thermometer. First one is clinical thermometer, and second one is laboratory thermometer. Laboratory thermometer. Clinical thermometer and laboratory thermometer. Okay, there are two more types of thermometer which are used to measure the temperature of maximum and minimum temperature of our day and like every day, that is for weather purpose, and that is maximum thermometer and minimum thermometer, and that is not in your syllabus to discuss it. That means it is just for the information. Okay, now we are mainly concerned about these two topics, these two types of the thermometer. So clinical thermometer is a thermometer which measures our body temperature, which is used for clinical purpose only, like whenever we have some fever, okay, cold and fever, then at that time what we doctors do, that they put a thermometer in our that inside our tongue and measure the temperature, isn't it, of our body. From that they are able to measure our, that means, body temperature and how worst our condition is. Okay, so clinical thermometer is used for, means only for that purpose only, that means only to measure our body temperature. What is our normal body temperature? So normal body temperature, normal human body temperature is how much? 37 degrees Celsius. What is degree Celsius? I told you in the previous class. In my previous video you can watch what is degree Celsius, Kelvin. This is the standard unit of temperature. So 37 degrees Celsius is our normal body temperature. Normally we whenever you are at normal condition, so this is what the average normal temperature of all the human beings. किसी को ज़्यादा भी हो सकता है टेम्परेचर, किसी का बॉडी का कम भी हो सकता है इससे, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है. ये क्या है, एवरेज है, मतलब कि ओवरऑल अगर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर देखा जाए तो ठीक है 37 डिग्री सेल्सियस. और जो मैक्सिमम ये है, तो हम ये होता है मिनिमम. ये हमारा मिनिमम बॉडी टेम्परेचर है बॉडी का. मैक्सिमम होता है 42 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, ये हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर बॉडी का. तो अच्छा, let us discuss about the clinical thermometer. That means its construction first. There is its construction is like this. There is a glass tube, okay, of inside which there is fine bore, मतलब बहुत ही पतला होल होता है ग्लास ट्यूब के अंदर. ठीक है, ये ग्लास ट्यूब है पूरा, और इसके अंदर पतला सा होल होता है ऐसा. ऐसा एक पतला होल होता है. इस होल में, अच्छा, यहाँ पे होता है एक ग्लास बल्ब. ग्लास बल्ब मतलब एक स्टोरेज का, मान लो कुछ स्टोर करने के लिए कुछ चीज़. वहाँ पे क्या रखा जाएगा उस बल्ब में? मर्क्यूरी. तो हम लोग उसको बोलते हैं ग्लास बल्ब, ओके, कंटेनिंग मर्क्यूरी. तो यहाँ पे होगा, ये है तुम्हारा ग्लास बल्ब कंटेनिंग मर्क्यूरी. मर्क्यूरी क्या होता है, मैंने बताया था ना, द ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट.
वो एक मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है और बहुत ही जल्दी एक्सपांड होता है, ठीक है, टेम्परेचर के हिसाब से। तो इस ट्यूब के अंदर, अच्छा यहाँ पे तो एक तुम्हारा ये होगा, चलो ऐसा टेढ़ा, देखो यहाँ पे है एक, मतलब ये ट्यूब जो है ना, और ग्लास बल्ब इज अटैच्ड विद दिस फाइन ट्यूब, इजंट इट। यहाँ से मरकुरी जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऐसे ऐसे बढ़ के जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो थोड़ा टेढ़ा है ये वाला जगह, ये वाला ट्यूब का जो थोड़ा पोर्शन टेढ़ा है, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग किंक, KINK, किंक। मतलब कि जो, मतलब ये क्या करेगा, मरकुरी को फ्लो को रोकेगा कुछ हद तक। कब रोकेगा मैं बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमारा ऐसे जो मरकुरी ऐसे जाएगा फ्लो होके, और सपोज यहाँ तक, मान लो यहाँ पे मेरा 37 डिग्री सेल्सियस, ये रीडिंग है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम कितना होगा इसका, मैक्सिमम होगा 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सारे ग्रेजुएशंस होगा, ऐसे 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 ग्रेडिंग्स लिखा होगा डिग्री सेल्सियस, ठीक है, मतलब वो स्केल का रेंज है, ओके। अभी हम लोग को डॉक्टर क्या बोलते हैं, इसको टंग के अंदर रखो, तो क्या होगा, इसमें से हमारे टंग से मतलब बॉडी का हीट ट्रांसफ़र होके इस मरकरी को एक्सपांड करेगा और कितना बॉडी टेम्परेचर उसके हिसाब से वहाँ तक एक्सपांड होगा, ठीक है। और जब हम लोग हाउ टू टेक रीडिंग इन ए थर्मोमीटर, ये एक टॉपिक है, मतलब कि कैसे हम लोग थर्मोमीटर में रीडिंग लेते हैं, ठीक है। किस थर्मोमीटर की बात करूँ मैं, क्लिनिकल, ठीक है। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर को इसमें लगाया, उसको लगाने टोंग के बीच लगाने के बाद उसको निकालेंगे और हॉराइजॉन्टली ही रखेंगे, ऐसे ये नहीं कि ऐसे कर दिया, नहीं, तुरंत ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करना है, थर्मोमीटर को धोना है, ये सब प्रिकॉशंस है। थर्मोमीटर को धो लेना है, उसके बाद उसको लगाना है, उसके बाद नहीं, लगाने से पहले उसको ऐसे ऐसे जर्क करना है, ठीक है, ऐसे ऐसे थोड़ा जर्क कर देने से क्या हो जाएगा कि जो थर्मोमीटर का रीडिंग पहले से मतलब कुछ बड़ा होगा, हो सकता है, तो वो अपना 37 से नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। और वो किंक से मतलब ऐसे ट्रांसफर होकर ये मरकरी इधर आ जाएगा, इसके लिए हम लोग उसको थोड़ा जर्क देते हैं। उसके बाद हम लोग टंग के बीच लगाएंगे, फिर निकाल के उसको हॉरिजॉन्टली चेक करेंगे कि कितना रीडिंग है, ठीक है, उस रीडिंग को नोट करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग थर्मोमीटर को, क्लिनिकल थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर करते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे प्रिकॉशंस का मेन प्रिकॉशंस क्या है, दैट प्रिकॉशंस मतलब यहाँ पे एक ऐसा बोल सकते हो कि डिसएडवांटेज, ठीक है, ऑफ यूजिंग क्लिनिकल थर्मोमीटर इज दैट दिस mercury is such a material that which is very toxic, okay, very toxic. If a drop of it goes into our body or into our eyes, it will damage a lot, okay। बहुत ही सावधान रहना है। मरकरी जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है, टॉक्सिक होता है और हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो उसको हम लोग बहुत ही सावधानी से यूज़ करेंगे ताकि वो गिर ना जाए, गिर के टूट गया तो बहुत प्रॉब्लम है, उसको डिस्पोज करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये हमें सावधानी बरतना होगा व्हाइल यूजिंग क्लिनिकल थर्मोमीटर, isn't it? लेकिन आजकल मार्केट में डिजिटल थर्मोमीटर अवेलेबल है। डिजिटल थर्मोमीटर क्या है, जिसमें मरकरी यूज़ नहीं होता है, तो वो सेफ़ है हमारे लिए इसके कंपैरिजन में, ठीक है। और आजकल मैक्सिमम यही चलता है, लेकिन अभी तक हर जगह पे तो हर कोई तो यूज़ नहीं करता है ना, तो उसके लिए हमें प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। अच्छा, यहाँ पे किंग क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट इज़ द यूज ऑफ और व्हाई ए किंग इज़ प्रोवाइडेड इन दिस क्लिनिकल थर्मोमीटर, ओके। बिकॉज जब हम लोग इस टंग से निकालेंगे थर्मोमीटर को और उसको ऐसे करेंगे टेम्परेचर नोट करने के लिए, तो क्या होगा, अगर ये किंक नहीं रहेगा तो सडनली जो टेम्परेचर वो ऐसे डिक्रीज होते जाएगा, लेवल मरकुरी का कमते जाएगा और वो बल्ब के अंदर जाते रहेगा। क्यों? बिकॉज आसपास के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो क्या होगा, मतलब फिट होने के लिए आसपास के टेम्परेचर, सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर आने के लिए वो रीडिंग ऐसे आएगा, ठीक है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे किंक दिया गया, ताकि उसको ऐसे करोगे तुम वर्टिकल डायरेक्शन में करोगे तो वो अपने आप नीचे ना जाए। सो द मरकुरी विल नॉट फॉल बाई इट सेल्फ इन द ट्यूब or in the bulb, okay, while measuring the temperature or taking body temperature. That's why a kink is provided there, ठीक है।
चलो ये तो हो गया हमारा बात क्लिनिकल थर्मोमीटर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, उसका रेंज क्या है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद किंक प्रोवाइड किया जाता है थर्मोमीटर में, उस थर्मोमीटर का रेंज कितना है। अच्छा, क्या हम लोग इस थर्मोमीटर से गर्म पानी विल और कैन वी मेजर hot water's temperature using clinical thermometer? So answer will be no, because hot water's temperature is more than 42 degrees Celsius or boiling water temperature is more than 42 degrees Celsius. That's why we cannot use. Next, come to laboratory thermometer. Laboratory thermometer is a temperature measuring device which is used to measure temperature in science laboratory. Like हम लोग जब एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं साइंस लैब में, तो हम लोग यूज़ करते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्शन लगभग इसी की तरह है, बस थोड़ा डिफरेंस क्या है, टेम्परेचर रेंज इसका ज़्यादा होगा और ये वाला जो किंक था यहाँ पे वहाँ पे नहीं होगा, रिमेंबर, ठीक है। तो देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है। सो इट इज़ ऑल्सो ए लॉन्ग ग्लास ट्यूब provided with a glass bulb in which mercury is stored. ग्लास बल्ब के अंदर मर्कुरी है एंड ए फाइन ट्यूब विथ ग्रेडिंग। Gradings will be there. Minimum grading is -10 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस मतलब 0 से कम, 0 से कितना कम, 10 कम, ठीक है। -10 डिग्री सेल्सियस से कहाँ तक होता है इसका टेम्परेचर, 110 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम। That means we can measure a minimum temperature of -10 degree Celsius using this laboratory thermometer and a maximum of 110 degree Celsius. Okay? तो इसके बीच बहुत सारे ग्रेडिंग्स हो गए। कितना ग्रेडिंग होगा इसके अंदर देख लो, बहुत सारा ग्रेडिंग होगा। इधर तो 10 है, उधर 10, 120 ग्रेडिंग्स होगा ऐसे 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 छोटे छोटे, ठीक है। और हर एक स्मॉलेस्ट डिवीजन, छोटा छोटा जो डिवीजन होगा, तो एक डिवीजन कितना होगा, 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिवीजन इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस होगा। सो दिस 1 डिवीजन is 1 degree Celsius. That means it can measure a minimum temperature of 1 degree Celsius. Got it? मतलब सबसे छोटा जो यूनिट होगा, कितना यूनिट मेजर कर सकता है, 1 डिग्री, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 0.5 नहीं मेजर कर सकता। तो 0.5 तो तुम लोग को मान लो हमारा जो रीडिंग है यहाँ पे आकर रुक गया, यहाँ पे, ठीक है। सपोज मर्क्यूरी का लेवल यहाँ पे आके रुक गया तो हम लोग इसको बीच में है, अगर डिविजन्स के बीच में है तो हम लोग उसको 0.5 ले सकते हैं, 0.7 ले सकते हैं, लाइक दैट। ओके, हाउ टू टेक रीडिंग यूजिंग लेबोरेटरी थर्मोमीटर। सपोज ए बॉइलिंग वाटर इज देयर इन ए कंटेनर। ओके, मतलब कि एक कंटेनर को हमने क्या किया, फ्लेम में डाल दिया है। इट इज़ बाई हीटेड बाई यूजिंग फ्लेम्स। नाउ आफ्टर सर्टेन टाइम नाउ पुट ए थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर हियर। इसके अंदर लेबोरेटरी थर्मोमीटर से डाल दो, ठीक है, और पानी गर्म हो रहा है तो तुमको क्या दिखेगा, तुरंत ये जो ट्यूब में मर्क्यूरी धीरे 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 बढ़ते जाएगा। और कब, जब वाटर बॉयल होना स्टार्ट होगा ही तब हम देखेंगे कि उसका टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर क्या होता है, प्योर वाटर बॉयल होता है। आर यू गेटिंग? बॉइलिंग टेम्परेचर ये हमारा। और 0 डिग्री पे क्या होता है, 0 डिग्री पे फ्रीजिंग टेम्परेचर। ओके, आइस पॉइंट बोलते हैं और ये बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, वाटर का, प्योर वाटर का। तो हम लोग उसमें देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से रीडिंग ले लेंगे। अच्छा, फिर मान लो कि मुझे ठंडा होते वक्त टेम्परेचर लेना है, तो क्या करूँगा मैं, ठंडा होते वक्त फिर उसको मैं फ्लेम को बंद कर दूंगा और थर्मोमीटर को ऐसे ही छोड़ दूंगा। धीरे धीरे पानी ठंडा होगा और जो ट्यूब में जो मर्क्यूरी का लेवल है वो भी डिक्रीज होते जाएगा लेकिन डिक्रीज क्यों हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे किंक नहीं है। अगर किंक होता तो क्या लेवल डिक्रीज होता, नो। तो क्वेश्चन एग्जाम में यही आता है कि व्हाई देयर इज नो किंक प्रोवाइडेड इन ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर, व्हाई, बट व्हाई इन केस ऑफ
क्लिनिकल थर्मोमीटर ए किंक इज प्रोवाइडेड। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंटली एग्जाम में आता है, तो तुमको लिखना है बिकॉज वाइल टेकिंग ऑब्जर्वेशंस इन लेबोरेटरी द laboratory thermometer in laboratory thermometer this means the temperature the mercury level should decrease finely, that means decrease smoothly or increase smoothly. Okay, therefore that means kink is not provided. If suppose we are taking observation while cooling, if there is a kink, then the level of the mercury will not go down. Okay, that's why we do not use kink here, while in case of this we use kink to that means यहाँ पे kink यूज करते हैं to oppose the fall down of mercury inside the bulb, but here it is not needed at all. Okay, so remember these things. Now questions comes here, one more question very important, that what are the difference between laboratory thermometer and clinical thermometer. laboratory thermometer और clinical thermometer में difference क्या है? The difference between लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो देखो हम लोग जो अभी हम लोगों ने पढ़ा उसी से हम लोग कुछ डिफरेंस तय कर सकते हैं। जैसे कि पहला डिफरेंस क्या हो सकता है कि इन केस ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इट कैन मेजर टेम्परेचर फ्रॉम -10 to 110 डिग्री सेल्सियस, वाइल इन केस ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर इट कैन मेजर टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 42 डिग्री सेल्सियस ओनली, isn't it? एंड सेकेंड डिफरेंस क्या ले सकते हो, देयर इज ए किंक। पहला तो लिखोगे टेम्परेचर का, टेम्परेचर रेंज -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसमें क्या लिखोगे, पहला रेंज, वही टेम्परेचर रेंज लिखोगे, कितना है 37 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद दूसरा डिफरेंस आ जाएगा हमारा नो किंक इज प्रोवाइडेड। किंक का मतलब मैंने बताया था ना, बहुत ही पतला सा, मतलब वहाँ पे जो रीजन है पाइप का या फिर ट्यूब का, उसको नेरो कर दिया है और थोड़ा टेढ़ा कर दिया है। ठीक है, उसको बोलते हैं किंक, नेरो कर देना। ठीक है, ताकि फ्लो रेट कम हो जाए। तो यहाँ पे किंक प्रोवाइड नहीं किया जाता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर में, बट यहाँ पे देयर इज ए किंक प्रोवाइडेड लिख देता हूँ। हाँ, समझ लेना, किंक प्रोवाइडेड। और क्या, used only for laboratory purpose। देखो ये क्वेश्चन भी आता है, कैन ए थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर बी यूज्ड फॉर मेजरिंग ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। क्या लेबोरेटरी थर्मोमीटर से भी हम लोग अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं? तो आंसर है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। कर सकते हो बट ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है उसका स्पेशल पर्पज़ है, और अगर हम लोग उससे अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर करेंगे तो करेक्ट रीडिंग नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज जैसे तुम टंग से निकालोगे वैसे करोगे, उसका लेवल जो है फॉल होने लगेगा, मर्क्यूरी लेवल फॉल क्यों होगा? बिकॉज किंक नहीं होता है, मैंने बताया था ना, तो उसे मेजर करना पॉसिबल नहीं है परफेक्ट रीडिंग। ठीक है, वाइल विथ ए क्लिनिकल थर्मोमीटर यू कैन डू ऑलवेज। ओके, सो यूज्ड ओनली फॉर laboratory purpose and this is used for clinical purpose, used only for clinical purpose। ऐसे और भी डिफरेंस लिख सकते हो तुम। ठीक है, बट मेनली 3 मार्क्स का डिफरेंस आ सकता है, तो ये 3 डिफरेंस लिख सकते हो आप एग्जाम में। ठीक है, मेनली ये 3 डिफरेंसेस है क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में, और भी डिफरेंसेस मिल सकते हैं, आप लिख सकते हो। जंट सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ओके, थैंक यू।